اور جب اس کی 15 تاریخ آتی ہے، 15 تاریخ کو کس شخصیت نے پردہ کیا ہے، 15 تاریخ کو کس ذات نے پردہ کیا ہے، آج جو تم کوڑوں کی فاتحہ اپنے گھر پر کرتے ہو، اس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ کوئی عام ہستی نہیں ہے، بلکہ اس ہستی کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ آج کوڑوں کی فاتحہ تم 22 تاریخ کو کرتے ہو، یاد رکھو ان کا وصال 15 تاریخ کا ہے، 15 تاریخ کا۔ فاتحہ تو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، لیکن جس دن ان کا وصال ہوا اس دن ہم فاتحہ کریں تو بات الگ ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق کون ہے؟ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے ہیں، امام زین العابدین، اور امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور امام محمد باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق۔ امام جعفر صادق کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کی عظمت و شان کیا ہے؟ انہیں صادق کہا جاتا ہے۔ 12 اماموں میں سب سچے ہیں، لیکن ایک کا لقب صادق پڑ گیا تو سوچو اس کی عظمت کا مقام کیا ہوگا، اس کی شان کا مقام کیا ہوگا۔ بڑے بڑے بادشاہ چاہتے تھے امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں بلانا، لیکن امام جعفر صادق ان کے دربار میں نہیں پہنچے۔ آؤ ذرا دیکھو کون امام محمد باقر ہیں۔ امام محمد باقر کی پہلے باپ کی شخصیت آپ سن لو، پھر اس کے بعد میں بیٹے کا تذکرہ کروں گا۔ اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے صحابی رسول ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے محدث ہیں، جن کو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ عمر بہت زیادہ ہو گئی تھی، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، کوفے کی سرزمین پہ رہنے لگے تھے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ امام محمد باقر وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جابر کو جب پتہ چلتا ہے تو کہا کہ مجھے امام محمد باقر سے ملنا ہے۔ امام محمد باقر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ملنے کے لیے ان کے مکان پہ تشریف لا رہے تھے، تب حضرت جابر نے کہا جیسے ہی آل رسول اپنے گھر سے چلے، جیسے ہی نبی کا شہزادہ اپنی آرام گاہ سے چلے، جیسے ہی فاطمہ کا لاڈلا اپنی آرام گاہ سے چلے، مجھے خبر کر دینا، میں یہاں پر ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا۔ آنکھوں میں روشنی نہیں ہے، لیکن امام محمد باقر جیسے ہی حضرت جابر کے گھر پر پہنچے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام محمد باقر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ عمر دراز صحابی رسول ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں، اس کے بعد قدم چومنے کے لیے جب جھکتے ہیں تب امام محمد باقر نے روک لیا، ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے نبی کے بزرگ صحابی ہیں، آپ میرے نانا کے بزرگ صحابی ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تب آپ نے امام محمد باقر کے کانوں میں کچھ کہا، اس کے بعد تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے، امام محمد باقر تشریف لے جاتے ہیں۔ حضرت جابر سے ان کے مریدوں نے پوچھا حضور پہلے یہ تو بتائیے، آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے، یہ بات ہم جانتے ہیں ایک آل رسول کی تعظیم کرنا چاہیے، ایک سید کا ادب کرنا چاہیے، حضور ذرا یہ تو بتائیے آپ نے ان کے کانوں میں کیا کہا تھا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنو، تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میں نے کان میں ان کے کیا کہا تھا، تو سنو اے میرے مریدوں سنو، میں نے ان کے کان میں ان کے نانا مصطفیٰ کا فرمان پہنچایا تھا۔ مدینے والے مصطفیٰ نے ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں تھا، تنہا تھا، میں تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ مدینے والے مصطفیٰ نے مجھے اپنے قریب کیا اور قریب کرنے کے بعد ارشاد فرمایا اے جابر تیری عمر لمبی ہوگی اور تو میرے بیٹے امام محمد باقر سے ملاقات کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ شورا اسلام کی آمد ہو رہی ہے، آپ میری طرف توجہ دیجئے، میرے بعد آپ شورا اسلام کو سماعت کریں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مدینے والے مصطفیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ جابر تیری عمر لمبی ہوگی اور تم میرے بیٹے امام محمد باقر سے ملاقات کرے گا۔ جب تیری ملاقات میرے بیٹے سے ہو تو میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا۔ سبحان اللہ۔ میرے بیٹے کو میرا سلام کہہ دینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام محمد باقر کو سلام کہا، حضرت امام محمد باقر تشریف لے گئے، پتہ چلا وہ امام محمد باقر ہیں
जिनके लिए मदीने वाले मुस्तफा का सलाम आ रहा है। इमाम मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला में मौजूद थे। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हैं। तारीख उठा करके देखो, करबला में छोटे थे, माँ की गोद में थे हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर और हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हजरत कासिम से कहा था कि मैं चाहता हूं कि तेरी बेटी के साथ अपने बेटे का निकाह कर दूं। हजरत कासिम कौन है? हजरत कासिम वो है जो मोहम्मद बिन अबू बकर के बेटे हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे हैं मोहम्मद और मोहम्मद के बेटे हैं कासिम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब हजरत कासिम से कहा, यानी अबू बकर सिद्दीक के पोते से कहा, मैं चाहता हूं अपने बेटे इमाम मोहम्मद बाकिर का निकाह तेरी बेटी के साथ करना चाहता हूं, तब हजरत कासिम ने कहा था मुझे खुशी होगी आपके नाना मुस्तफा की बारात मेरे दादा के आंगन में उतरी थी और मुझे ये खुशी होगी कि आज उनके शहजादे की बारात मेरे आंगन में उतरेगी। हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु पुकार के फरमाया करते थे, मैं हजरत इमाम जाफर सादिक जिनसे सिलसिला नक्शबंदिया का सिलसिला चला है, जहां पर नक्शबंदी सिलसिला खत्म होता है, नक्शबंदियों के इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश बाद रिवायतों में है सन हिजरी 80 में हुई, बाद रिवायत में है कि सन हिजरी 82 में हुई और जमहूर उलमा का इत्तिफाक इस बात पर है कि सन हिजरी 83 में हुई। 83 हिजरी में हजरत इमाम जाफर सादिक मदीना मुनव्वरा में पैदा होते हैं। आपके वालिद का नाम इमाम मोहम्मद बाकिर रजी अल्लाह ताला अन्हु और वालिदा का नाम उम्मे फरवा रजी अल्लाह ताला अन्हा। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ज्यादा परहेजगार, बहुत ज्यादा मुत्तकी और आप खुद बयान फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने हमको वो उलूम अता फरमाए हैं कि कुछ उलूम तो हमने लोगों के सामने बयान कर दिए और फरमाते हैं कि बाज़ उलूम तो वो हैं जो हमने लोगों के सामने बयान नहीं किए। आप तवज्जो दीजिए मेरी तरफ। एक दहरिया आया, दहरिया उसे कहते हैं जो खुदा को न माने, खुदा की वहदानियत का इकरार न करे। उसने इमाम जाफर सादिक से आकर के एक सवाल किया कि आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने फरमाया क्या सवाल है? उसने कहा मेरा सवाल ये है, इतना याद रखना मैं कुरान और हदीस को नहीं मानता, इतना याद रखना मुझे ऐसा जवाब देना जो मैं मान लूं। आपने फरमाया तेरा सवाल क्या है? उसने शीशी निकाली, उसने कहा क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि सातों आसमानों को इस शीशी के अंदर बंद कर दे? बहुत गौर से सुनना, इमाम जाफर सादिक की बात कर रहा हूं। बहुत कम इन शख्सियतों का जिक्र जलसों में सुनने को मिलता है, वाकयात तो बहुत आप सुनते रहते हैं। दहरिये ने सवाल किया बताओ क्या अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि सातों आसमानों को इस शीशी के अंदर बंद कर दे? आपने फरमाया बेशक इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। तो उसने कहा मेरी एक और शर्त है, शर्त यह है कि ना शीशी बड़ी होना चाहिए और ना आसमान छोटे होना चाहिए। सवाल देखें मिल जाएगा किसी किताब में इसका जवाब। क्या सवाल कि सातों आसमान शीशी के अंदर बंद होना चाहिए, ना शीशी बड़ी हो और ना आसमान छोटे हो। अब आप मुझे जवाब दीजिए, मैं कुरान को नहीं मानता हूं, मैं हदीस को नहीं मानता हूं, मुझे हदीस की किताबों से जवाब नहीं, बल्कि ऐसा जवाब मुझे दीजिए कि जिसको मैं मान लूं। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं तुझे तेरे सवाल का जवाब मैं देता हूं। आपने इरशाद फरमाया पहले ये बता तेरा वजूद है? बोला हाँ मेरा वजूद है। फरमाया वजूद में तेरे आंख है? कहा हाँ मेरे वजूद में आंख है। फरमाया ये आंख का जो ढेला है, इस ढेले के अंदर अल्लाह ने एक छोटा सा नूर का नुक्ता रखा है, छोटा सा नूर का नुक्ता है। जब उस नूर से तू सातों आसमानों को देखता है, सातों आसमान तेरी आंख में समा जाते हैं, सातों आसमान तेरी आंख के अंदर समा जाते हैं। ना तेरी आंख का ढेला बड़ा होता है और ना आसमान छोटे होते हैं। उसकी समझ में आ गई, कदमों पे गिर के कहता है हुजूर मैं समझ गया
जाफर सादिक है, इरशाद फरमाते हैं, अरे जब तेरी आंख के ढेले में अल्लाह सातों आसमानों को समा सकता है तो इस छोटी सी शीशी के अंदर भी सातों आसमानों को समा सकता है। सारे तकबीर, सारे रिसालत, सारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से दरिया शामिया, उर्से दरिया शामिया, सारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान। कौन? इमाम जाफर सादिक। बहुत बड़े इमाम का नाम इमाम जाफर सादिक है। हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, हम जिस इमाम की पैरवी करते हैं, हम मसाइल शरिया में जिस इमाम को अपना इमाम मानते हैं, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा है। इमाम आजम अबू हनीफा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने 2 साल हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं। और जब इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, जब दाढ़ी के बाल सफेद पड़ गए थे, जब भौं के बाल सफेद पड़ गए थे, जब जिस्म पर, जब बालों में कोई बाल काला नजर नहीं आ रहा था, तब इमाम आजम अबू हनीफा से किसी ने पूछा, हुजूर आपकी उम्र कितनी है? तब इमाम आजम ने फरमाया, मेरी उम्र सिर्फ 2 साल है। लोगों ने कहा आप मजाक करते हैं, आपकी उम्र 2 साल कैसे हो सकती है? तब इमाम आजम अबू हनीफा ने सवाल करने वाले से फरमाया, नोमान इब्ने साबित सिर्फ 2 साल अपनी उम्र इसलिए मानता है कि मेरी 2 साल उम्र वो है जो मैंने हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारी है। सुभान अल्लाह, सुभान। वक्त का इमाम जिनकी खिदमत में जिनकी जूतियां सीधी करे उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। अपने वक्त का इमाम इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें मुहद्दिस मदीना कहा जाता है, जो मदीने में इल्म हदीस देते हैं, वो इमाम जाफर सादिक की जूतियां सीधी कर रहे हैं। अपने वक्त के बड़े वासिल बिन अता जैसे आकर के इमाम जाफर सादिक की बारगाह में शरफ़ तलम्मुज़ हासिल कर रहे हैं, उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। खलीफा मंसूर का जमाना था, खलीफा मंसूर के किसी ने कान भर दिए थे कि ये इमाम जाफर सादिक तुम्हारा अदब नहीं करते हैं। बहुत चाहा खलीफा ने बुलाना अपने दरबार में, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा उसके दरबार में नहीं गया। खलीफा चाहता था ये आकर के मेरी गुलामी करे, ये उलमा मुहद्दिसीन आके मुझे सुबह शाम सलाम किया करे। अपने वक्त का इमाम जाफर सादिक कहते हैं, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हज़रात, जब एक दिन खलीफा ने कहा ये मेरे पास नहीं आते हैं, अपनी तौहीन महसूस करने लगा, अपनी इहानत महसूस करने लगा। कहा कि मैं चाहता हूं, जल्लाद को हुक्म दिया कि मैं बुलाने भेज रहा हूं। जैसे ही जाफर सादिक मेरे कमरे के अंदर आए, जब फौरन उनकी गर्दन, मैं अपना ताज उतारूंगा सर से, तू उनकी गर्दन को मार देना। जल्लाद दरवाजे पे खड़ा हो गया और खलीफा मंसूर इस इरादे से था, जैसे ही इमाम जाफर सादिक आएंगे मैं उनकी गर्दन उड़वा दूंगा, क्योंकि ये मेरा अदब नहीं करते हैं। इमाम जाफर सादिक जैसे ही तशरीफ लाए, जल्लाद सोच रहा था आज काम तमाम हो जाएगा। मुखालिफीन समझ रहे थे आज इमाम जाफर सादिक का काम तमाम हो जाएगा। उन्हें क्या पता, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। नूरे हक इस्लाम है, उसको बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान। हजरत इमाम जाफर सादिक जैसे ही तशरीफ लाए, जैसे ही गेट को पार किया, जल्लाद खड़ा हुआ था। खलीफा मंसूर फौरन तख्त से नीचे उतर गया, कुर्सी से नीचे उतर गया, अदब के साथ हाथ जोड़ता हुआ आया और इमाम जाफर सादिक को ले जाकर के कुर्सी पे बिठा दिया, तख्त पे बिठा दिया। कहने लगा, हुजूर खिदमत का मौका मुझे भी दे दिया करें। हजरात, ये देख करके जल्लाद हैरत में पड़ गया। मुझसे कह रहे थे कि गर्दन मार देना, और अब खलीफा कैसे अदब कर रहा है। और जब हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ ले गए, तब जल्लाद ने पूछा ये मामला क्या था? तुमने मुझसे कहा कि गर्दन मार देना जाओ इमाम जाफर सादिक की, और अब तुम इनका अदब करते हुए नजर आ रहे हो। तब खलीफा ने कहा, खामोश हो जा, तूने उनके आगे आगे सांप चलता हुआ नहीं देखा था, तूने उनके आगे आगे अजदहा चलता हुआ नहीं देखा था। जल्लाद बोला, मुझे कुछ नजर नहीं आया। खलीफा मंसूर ने कहा, अरे जैसे ही इमाम जाफर सादिक ने मेरे कमरे के अंदर कदम रखा, महल के अंदर कदम रखा, एक अजदहा मुंह फाड़ करके, एक उसने मेरी कुर्सी के नीचे अपना मुंह रखा, दूसरा महल के ऊपर रखा, और हंसी
फसीहो बलीग जुबान में मुझसे बोला, इंसानी आवाज में मुझसे बोला, खबरदार अगर तूने इमाम जाफर सादिक को जर्रा बराबर भी तकलीफ पहुंचाई तो तेरे महल को, तुझे दोनों को चकनाचूर कर दूंगा। वो कहता है ये देख करके मैं डर गया। उस अजीम हस्ती की याद में आप बैठे हो, उसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं, जिसकी हिफाजत का जिम्मा रख ले उसे इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं। आओ जरा तारीख को उठा करके देखो, यही हजरत इमाम जाफर सादिक है। दूसरी बार जब खलीफा ने बुलाया, बुलाने के बाद में खलीफा फिर डर गया आग का चेहरा देख करके। खलीफा इतना डर गया, इतना डर गया कि प्यास लगी, पानी मांगने लगा। जब एक कनीज पानी लेकर के आई, आपने उसका हाथ पकड़ के कहा, एक बार एक खलीफा जरा ये तो बता, अगर ये पानी तुझे ना मिले तो क्या करेगा? बोला इतनी सख्त प्यास है। फरमाया इसके बदले में क्या दे सकता है? बोला आधी हुकूमत दे सकता हूँ, आधी सल्तनत, आधी बादशाहत दे सकता हूँ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया पी ले। पीने के बाद आपने फरमाया अब जरा ये बता, अगर ये पानी तेरे अंदर से ना निकले तो इस पानी को निकालने के लिए तू क्या दे सकता है? उसने कहा अगर पानी मेरे अंदर से नहीं निकला तो मैं परेशान हो जाऊंगा, मैं मरने की दहलीज पे पहुंच जाऊंगा। इस पानी को निकालने के लिए मैं अपनी आधी सल्तनत दे सकता हूं। पता चला इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, ए बादशाह, एक कटोरा पानी के लिए, एक गिलास पानी के लिए आधी तूने पीने में दे दी, आधी तूने पानी निकालने में दे दी। अरे तेरी बादशाहत बची कहां? फिर तू घमंड किस पे करता है? फिर तू तकब्बुर किस पे करता है? आज थोड़ी सी दौलत तुम्हारे पास क्या आ जाए, गरीबों के ऊपर जुल्म सितम करना शुरू कर देते हो। आज थोड़ा सा पैसा रब ने क्या दे दिया, तुमने गरीबों को खातिर में लाना बंद कर दिया। याद रखो दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। जो महल में तू रह रहा है ये भी अल्लाह ने दिया है, और वो गरीब जो झोपड़ी में रह रहा है उसे भी अल्लाह ही ने रहने के लिए दी है। तू अल्लाह का शुक्र अदा कर दे, क्योंकि तुझे अल्लाह ने जो दौलत दी है रब की बारगाह में सजदे गुजार अदा करके रब का शुक्रिया अदा कर, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है। रब की बारगाह में ये अर्ज कर, मौला तूने मुझे जो पैसा दिया है, तूने मुझे जो दौलत दी है, तूने मुझे जो सरमाया दिया है, मैं गुरूर नहीं करता हूँ, मैं तकब्बुर नहीं करता हूँ। मौला जहां जहां खर्च करने की जरूरत पड़ेगी मौला तेरी राह में मैं इसको खर्च करता चला जाऊंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से दरियाशा मियां, मौलाना फुरकान रजा क़िबला, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात, तो वो हजरत इमाम जाफर सादिक इरशाद फरमाते हैं, बेशक घमंड किस बात पर? एक गिलास पानी पीने में तूने आधी सल्तनत दे दी और आधी उस पानी को निकालने में तूने सल्तनत दे दी। फिर बादशाह घमंड तकब्बुर किस पर? तो बादशाह उसने हाकिम ने कहा, उस खलीफा मंसूर ने कहा, हुजूर आप क्या चाहते हैं? आपने फरमाया मैं ये चाहता हूं कि दोबारा मुझको परेशान मत करना, मैं अपने रब की इबादत कर रहा हूं, मैं गोशा नशीनी इख्तियार किए हुए हूं, अब दोबारा मुझको परेशान मत करना। ये हजरत इमाम जाफर सादिक हैं। बताया जाता है, रिवायतों में मिलता है कि आपको अंगूर के अंदर जहर मिला करके दिया गया था, अंगूर के अंदर जहर मिला करके दिया गया, उससे आपकी शहादत हुई थी। हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर बैठने वाले परवरदिगार कुरान में फरमाता है, वकुलू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के दामन को पकड़ लो। उन्हीं सच्चों में से एक सच्चे का मैंने जिक्र किया जिसे इमाम जाफर सादिक कहते हैं। आओ जरा देखो सच्चे